Okay, students, so today we will start chapter 3, that is classification of elements and periodicity in properties. Students, in 17th century, or I must say in earlier time, there were only some elements, like in starting, maybe there were 5 to 10 elements, then 15, then 20, then ultimately there were 13 elements up to 17th century. At the end of the 17th century, there were only 31 elements, known 31 elements were there. And it was very easy to study and remember the properties of that elements, because if you are having 31 elements, so easily you can study each and every element individually and can learn the properties. But then slowly, the more elements start inventing. And if we say the later part of the 18th century, if we talk about the later part of the 18th century, so up to that, the number of elements has increased a lot. Now, studying all the such a large number of elements and remembering their properties was very difficult for the scientists, because उन्हें सिर्फ एक ही काम तो था नहीं कि प्रॉपर्टीज को पढ़ के उसे याद रखना, उसके बेसिस पर उन्हें बहुत सारे और काम भी करने पड़ते थे. So it became very difficult to study individually the chemistry of all the elements and their compounds. So what they realize now there is a need to classify the elements. There should be some method of classification of elements. So on the basis of what we arrange the elements in such a way कि अगर हम किसी एक भी प्रॉपर्टी किसी एक एलिमेंट की अच्छे से समझ लें, उसकी प्रॉपर्टीज को लर्न कर लें, सो द सिमिलर एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी जो है हमें ऑटोमेटिकली पता चल जाए. तो उन्होंने सोचा कि हमें कोई ऐसा क्लासिफिकेशन करना चाहिए जिसमें सिमिलर एलिमेंट्स को एक साथ रखा जाए, और किसी एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी स्टडी करने से हमें बाकी सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी पता चल जाए. तो यहाँ पर हमें क्लासिफिकेशन की जरूरत पड़ी, या हम ये कह सकते हैं कि दिस इज नोन एज क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स. ये जो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स था, ये इसका रिजल्ट क्या निकला, फिर उन्होंने जब क्लासिफाई करके एलिमेंट्स को अरेंज किया इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर, तो उसे हमने फिर क्या बोला, दैट इज कॉल्ड एज पीरियोडिक टेबल. तो मतलब बेसिकली हमने पीरियोडिक टेबल बना लिया. So what we can say that the arrangement of known elements according to their properties in a tabular form is called as periodic table. But क्या वही periodic table की हम बात कर रहे हैं which we are having nowadays, that is a modern periodic table? No. उससे पहले बहुत सारे और क्लासिफिकेशंस हुए, हालांकि अभी हम सारे तो नहीं पढ़ेंगे, बट जो कुछ बहुत कॉमन और बहुत फेमस क्लासिफिकेशंस थे, उससे हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं. I think in class 9th and 10th also you people must have studied about 2-3 classifications. So but still मैं आपका स्टार्टिंग से ही शुरू कर रही हूँ. अगर हम बात करें सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन था, तो दैट वाज द क्लासिफिकेशन ऑफ लेवोजियर. वैसे तो लेवोजियर एक साइंटिस्ट थे. उन्होंने क्या करा था, उन्होंने जितने भी एलिमेंट्स थे, they have classified them into two categories, that is metals and non-metals. You people have studied in class 8th I think about it, कि elements जो हैं those are having the this properties, means they are having the positive charge, or they are hard in nature, they are malleable, they are ductile, shiny appearance, they will come in the category of metals. And those are soft and non-malleable, not ductile, they will come in the category of non-metals. But then certain the other scientists realize that there are not only metals and non-metals, there are metalloids also, there are some other elements also, those neither fit in the category of metal nor fit in the category of non-metals, जिन्हें हम metalloids बोलते हैं जनरली. तो उनको पोजीशन कहाँ मिलेगी, और ये कोई बेस्ट मेथड नहीं है स्टडी करने का. फिर उन्होंने बेसिकली फिजिकल प्रॉपर्टीज पे ज्यादा जोर दिया था. तो उन्होंने कहा फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पर किसी को क्लासिफाई करना बहुत ज्यादा अच्छा मेथड नहीं है. ऑल्दो केमिकल प्रॉपर्टीज भी उन्होंने ली थी कि इलेक्ट्रॉन जो डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, वो मेटल्स हैं, और जो गेन करते हैं वो नॉन मेटल्स हैं. बट क्लासिफिकेशन इतना अप्रोप्रिएट नहीं था, उसमें सारे एलिमेंट्स नहीं आ पा रहे थे. तो ये ज़रूरत पड़ी कि ये दूसरे क्लासिफिकेशन की ज़रूरत पड़ी. ऑल्दो उनका जो क्लासिफिकेशन था उसने बहुत सारे साइंटिस्ट को आइडिया दिया कि हमें किस तरीके से क्लासीफाई करना है, और बहुत सारी नई नई चीज़ों के बारे में बताया, और क्लासिफिकेशन की इम्पोर्टेंस को रियलाइज करवाया बेसिकली. तो जब एक काम को एक साइंटिस्ट स्टार्ट करता है, तो बहुत सारे साइंटिस्ट उस पर काम करना शुरू कर देते हैं. तो सेम वे द डिफरेंट साइंटिस्ट हैव गिवन देयर डिफरेंट थ्योरीज. उसमें जो नेक्स्ट हमें पढ़ना है, जो हमारे पास नेक्स्ट थ्योरी है, उस वो आती है हमारे पास डॉबर्नियस ट्राइड्स थ्योरी, है ना. ये आप लोगों ने पढ़ी होगी शायद 10th में या किसी में. तो क्या था ये डॉबर्नियर ट्राइड्स?
डॉबरनियर ट्राइब्स ने क्या किया, उसने अरेंज करा एलिमेंट्स को इन द ग्रुप ऑफ 3 ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। अच्छा, ये बात आप यहाँ बार बार मैं जोर दूंगी इस चीज को, आप ध्यान देना कि कौन किसके बेस पर अरेंज कर रहा था। तो डॉबरनियर ने जो अरेंजमेंट किया था, दैट वाज द अरेंजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, एंड ही हैज अरेंज्ड इन सच अ वे, उसने तीन तीन का ग्रुप बना दिया था सिर्फ, एंड उन तीन तीन के ग्रुप में ही हैज अरेंज्ड इन सच अ वे कि जो हमारा मिडिल एलिमेंट होता था उसका जो एटॉमिक मास है, दैट इज ऑलवेज द मीन ऑफ द masses of terminal elements। जो हमारे टर्मिनल पे एलिमेंट्स होंगे उनका जो मास होगा, एटॉमिक मास, उसका जब हम मीन निकालेंगे तो वो हमारा एटॉमिक मास आ जाएगा सेंटर यानी मिडिल वाले एटम का। लाइक देखो ये यहाँ पर दो तीन ट्राइड्स मैंने आपके लिए बना के रखे हैं। फर्स्ट इज ऑफ लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। ठीक है, लिथियम का एटॉमिक मास है 7, सोडियम का है 23 एंड पोटेशियम का है 39। So you can see easily here that he has arranged this triad on the basis of increasing atomic masses। और इन दोनों का अगर हम मास निकालें, that is कितना आ जाएगा हमारे पास 39, और इसका मास कितना है हमारे पास 3। ठीक है, इन दोनों को प्लस करें और 2 से हम डिवाइड कर दें तो इट विल बिकम 23। तो सोडियम का मास कितना आ जाता है हमारे पास 23। सेम वे वी आर हैविंग कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। कैल्शियम का मास हमारे पास कितना है 40 एंड बेरियम का कितना है 137। इन दोनों को अगर हम प्लस करते हैं 40 प्लस 137 एंड डिवाइडेड बाई 2, इट विल बिकम 58.5, जो कि हमारा स्ट्रोंशियम का मास आ गया। यहाँ स्क्रीन पर आपको कुछ थोड़ा सा अलग लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, वो अप्रॉक्स ऊपर नीचे की वजह से, यहाँ पर आप देख सकते हो एग्जैक्ट लिखा हुआ है। ठीक है, दिस इज क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। क्लोरीन का मास है हमारे पास 35.5 एंड आयोडीन का है 127। इन दोनों को प्लस करके अगर 2 से डिवाइड कर देते हैं तो इट बिकम्स 81.2, जिसे हम 82 अप्रोक्सीमेटली लिया था और कहीं कहीं जगह 81 भी लिखा हुआ आपको मिलेगा। तो वो मास ले लिया गया ब्रोमीन का। तो क्या बोला उसने कि 3 एलिमेंट्स जो हैं, इन तीनों को अगर हम एटॉमिक मासेस के बेस पर अरेंज करें तो इन दोनों का जो मास है उसके मीन, उसका जो एवरेज होगा वो सेंटर वाले एटम का मास होगा, और इन तीनों की प्रॉपर्टीज जो है वो सेम होगी। जो तीन तीन का ग्रुप बनाया उसने बोला इन तीनों की प्रॉपर्टीज सेम होंगी। लाइक अगर आप लिथियम के बारे में स्टडी कर लेते हो तो सोडियम एंड पोटेशियम आल्सो पोजेस द सेम प्रॉपर्टीज। if you study calcium then strontium and barium also possess the same properties, and if you study chlorine तो bromine और iodine की प्रॉपर्टीज आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएंगी। ऐसा उसने बोला था। लेकिन वो बहुत ज्यादा ट्रायड्स बना नहीं पाया, कुछ ही एलिमेंट्स के ट्रायड्स वो बना पाया। तो क्वेश्चन ये आया कि बाकी के एलिमेंट्स की क्या बात करें, बाकी के एलिमेंट्स कहाँ जाएंगे। ठीक है, और इससे उसकी काफी सारी जो प्रॉपर्टीज थी वो सेम भी नहीं आ पा रही थी, बट बेसिकली यही रीजन था कि वो कुछ ही एलिमेंट्स के ट्रायड्स बना पाया, ज्यादा ट्रायड्स वो बना ही नहीं पाया। तो ऑब्वियसली एलिमेंट्स तो और भी थे, उनका भी क्लासिफिकेशन होना जरूरी था। तो नाउ देयर वाज नीड ऑफ अनदर क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो जो दूसरा क्लासिफिकेशन हमारे पास जो हमें पढ़ना है, दैट इज न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। अब न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव क्या था, न्यूलैंड ने क्या किया, उसने म्यूजिक सिखाया हमें, है ना। ये जो न्यूलैंड थे हमारे म्यूजिक टीचर थे एक्चुअली। क्या बोला उसने, अकॉर्डिंग टू हिम क्या, इफ एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, अगर हम किसी भी एलिमेंट को उनके एटॉमिक मासेस के बेस पर अरेंज करें, अगेन एटॉमिक मासेस, सो after every 8 element the properties gets repeated। क्या बोला उसने कि 8 एलिमेंट के बाद जो प्रॉपर्टी होगी वो रिपीट होगी, यानी सारे गामा पाधानी हाइड्रोजन लिथियम बेरियम, कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7। तो जो 8th एलिमेंट है वो बोला उसने बोला प्रॉपर्टी रिपीट करेगा, यानी जो फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी है और जो ये 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी है ये सेम होगी। इसके बाद फिर से अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8th एलिमेंट आ गया क्लोरीन, तो फ्लोरीन और क्लोरीन की प्रॉपर्टी सेम होंगी। देन अगेन क्लोरीन के बाद फिर 7 देखें तो यहाँ पर कोबाल्ट और निकल की प्रॉपर्टी सेम होंगी और यहाँ पर ब्रोमीन की प्रॉपर्टीज सेम होंगी। जबकि अगर हम आज के हिसाब से बात करें तो यस, क्लोरीन क्लोरीन एंड ब्रोमीन हैव द सिमिलर प्रॉपर्टीज, एंड हाइड्रोजन में भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं नॉन मेटल्स की, तो आप कह सकते हैं, बट स्टिल ये मेथड जो था वो अप्रोप्रिएट नहीं था। क्यों अप्रोप्रिएट नहीं था, क्योंकि जब उसने ये दिया उसके बाद उसने किसी भी नोबल एलिमेंट को यहाँ पर पोजीशन नहीं दी है। अब अगर आप देखो कि यहाँ पर फ्लोरीन के बाद हमारे पास क्या आता है, नियॉन आता है ना। तो नियॉन अगर यहाँ पर हम एंटर कर देते हैं तो ये सारा सिस्टम ही हमारा गड़बड़ हो जाएगा। नियॉन इज ए नोबल मेटल, तो उसके हिसाब से हमारी
लिथियम की और नियॉन की, क्योंकि नियॉन जो है फ्लोरीन के बाद आ रहा है। तो लिथियम को अगर हम 1 मान लें तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8th एलिमेंट यहाँ पर अगर हम नियॉन डाल दें, जबकि नोबेल एलिमेंट्स जब इन्वेंट हुए तो यहाँ पर 8th एलिमेंट नियॉन डाला, तो नियॉन और लिथियम की प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए थी अकॉर्डिंग टू ऑक्टेव रूल, क्योंकि हर फर्स्ट और 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम होती है। लेकिन हम सबको पता है कि नियॉन इज अ नोबेल एलिमेंट एंड लिथियम इज अ मेटल, इन दोनों की प्रॉपर्टीज बिल्कुल भी सेम नहीं होती हैं। तो यहाँ ये फेल हो गया है ना। और उसके बाद इसका भी यही सेम प्रॉब्लम था कि वो भी ये अपने सुरों का जो ये कॉम्बिनेशन उसने बनाया था वो सारे एलिमेंट्स के लिए नहीं बना पाया, कुछ ही एलिमेंट्स कहीं लिमिटेड रह गई उसकी स्टडी। तो अब हमारे पास नेक्स्ट साइंटिस्ट आए, ठीक है। नेक्स्ट साइंटिस्ट हमारे कौन थे, ये डायरेक्ट मेंडलीव है वैसे, लेकिन बीच में लॉथरमियर भी एक साइंटिस्ट आए थे। लॉथरमियर ने भी क्लासिफाई किया था। एक्चुअली उन्होंने कर्व बनाया था, ग्राफ बनाया था इन बिटवीन द एटॉमिक मासेस, एटॉमिक वेट्स एंड एटॉमिक वॉल्यूम। इन दोनों को लेकर उन्होंने क्या बनाया था, एक ग्राफ बनाया था। ऑल्दो उनकी जो थ्योरी है वो इतना ज्यादा लाइट में नहीं आई मेंडलीव से पहले, मेंडलीव के बाद आई वो लाइट में, और उसने बहुत सारी बातों पर जो है लाइट डाली, बहुत सारी बातों को इनलाइटन किया, बट उस वक्त उसे बहुत ज्यादा नाम नहीं मिला था। उसने ग्राफ्स बनाए थे, ग्राफ, ठीक है। यहाँ सपोज एटॉमिक वॉल्यूम ले लिया, यहाँ एटॉमिक वेट ले लिया हमने, और डिफरेंट एलिमेंट्स के ग्राफ बनाए। तो डिफरेंट एलिमेंट्स के ग्राफ बनाकर उसने क्या बोला कि जो कर्व होता है, हर कर्व की एक हाइट होती है, तो जो सेम एलिमेंट्स है वो सेम हाइट पर रहेंगे। लाइक सबसे ऊपर जो पीक पर जितने भी एलिमेंट्स उसने देखे थे, जो उसके ग्राफ में सबसे ऊपर आ रहे थे, वो कौन थे, वो एल्केली मेटल्स थे। और एल्केली मेटल्स में सबकी प्रॉपर्टीज ऑब्वियसली सेम ही होती है। तो उसने बोला कि ग्राफ में जो भी सेम लेवल पर आएंगे, जैसे ये सेम लेवल पर आ गए, ये सेम लेवल पर आ गए, ये सेम लेवल पर आ गए, तो उन सबकी प्रॉपर्टीज भी सेम होती है, ऐसा उसने बोला। उसने बोला कि वेट इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स, in elements those are having the same properties show same peak position in the graph, ठीक है। इसके बेस पर उसने क्लासिफाई किया। लेकिन अब ये जो मान लो ग्राफ है हमारा, ग्राफ पर जो पोजीशन मिल रही है किसी मेटल को या किसी एलिमेंट को, उसको याद थोड़ी ना रख सकते हैं। अब ग्राफ में कोई भी पोजीशन अप्रोप्रिएट नहीं होती। अप्रोप्रिएट से मेरा मतलब है कि आपने एक ये लाइन खींची, सपोज लाइन में यहाँ एक एलिमेंट है, यहाँ एक एलिमेंट है, यहाँ एक एलिमेंट है, तो आपको ये तो पता चल गया कि ये सब एलिमेंट एक ही लाइन में आ रहे हैं, तो इन सबकी प्रॉपर्टीज सेम होंगी। लेकिन अगर आपसे कोई इनकी पोजीशन डिफाइन करने को बोले तो आप इसकी अप्रोप्रिएट पोजीशन नहीं बता सकते, क्योंकि पिक्चर में किसी भी चीज की अप्रोप्रिएट पोजीशन को नहीं बताया जा सकता। तो दिस वाज नॉट अ गुड मेथड टू टेल द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ एनी एलिमेंट। और एक ग्राफ में अगर आप सपोज बार ग्राफ भी बना रहे हैं, इस तरीके का ग्राफ बना रहे हैं, वेव्स की फॉर्म में बना रहे हैं ग्राफ को, तो जो सबसे ऊपर है वो क्या है, हमारे एल्किली मेटल्स। उसके नीचे हम बोले थोड़ा सा हेलोजेंस है, लेकिन कितनी नीचे है वो, क्या उनकी एग्जैक्ट पोजीशन है ग्राफ में, ये नहीं पता चल पाया था। ऑल्दो बहुत सारे आइडियाज इससे मिल गए थे और मेंडलीव ने भी इससे बहुत सारे आइडियाज लिए, हालांकि उसने कभी मेंशन नहीं किया इसके बारे में, बट बहुत सारे आइडियाज दिए। एंड मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल था, बेसिकली उसने तो पूरा पीरियोडिक टेबल ही दे दिया था, वो सबसे ज्यादा फेमस हुआ था, सबसे ज्यादा हमने इसको स्टडी किया। और जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उससे पहले मेंडलीव का ही पीरियोडिक टेबल देखा जाता था। इन 1869 मेंडलीव जो जिनका पूरा नाम था दिमित्री मेंडलीव, जो बहुत ही रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन दिया, या ऐसा बोला जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स से। ही हैज बेसिकली गिवन अ लॉ। क्या लॉ था उनका, तो लॉ था द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स। अगेन एटॉमिक वेट, अगेन एटॉमिक मासेस की बात हो रही है यहाँ पर। अब तक देखो हम सब जितने भी क्लासिफिकेशन हमने किए हैं, सब में क्या हो रहा है, एटॉमिक वेट्स की बात हो रही है, सब में एटॉमिक वेट की बात हो रही है। मेंडलीव ने भी यही बोला कि जितनी भी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होती है किसी भी एलिमेंट की, वो उसके एटॉमिक मास के पीरियोडिसिटी पे डिपेंड कर रही है। पीरियोडिसिटी मतलब रिपीटेशन, उसकी रिपीटेशन के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। तो बहुत सारी बातें उसने हमें बताई। तो क्या था, मेंडलीव ने एक पीरियोडिक टेबल हमें दे दिया। तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल जो हमारा बेस है, जो हमारा उसका, वो क्या है, एटॉमिक मास। he has divided his periodic table into 7 horizontal lines। 7 horizontal lines थी उसमें, जिससे उसने क्या बोला, periods। और 8 vertical columns थे, ठीक है, जिससे क्या बोला गया, ग्रुप। और हर ग्रुप जो था, ये जो वर्टिकल कॉलम से, वो फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड था, ए एंड बी, क्लियर। और उसने एक और ग्रुप बाद में बनाया जिसे हमने जीरो ग्रुप का नाम दिया। जब नोबेल एलिमेंट्स को इन्वेंट कर दिया गया तो अब उसके लिए तो यहाँ पे वो था नहीं पोजीशन,
इन पर्टिकुलर ग्रुप्स में और पीरियड्स में, तो उसने एक और ग्रुप बनाया जिसे हम जीरो ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। और इसके बाद इसके जो पीरियोडिक टेबल को क्या बोला गया, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। So now in modified form of modern in sorry modified form of Mendeleev periodic law, there are 7 periods, 8 groups, and 1 zero group, and 8 groups are further divided into 2 subgroups, that is A and B. A में सारे नॉर्मल एलिमेंट्स को रखा गया जो आजकल हम एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ते हैं, जो एस और पी ब्लॉक में हमारे रखे गए हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। उस टाइम से उसने हर ग्रुप के ए वाले कॉलम में रखा था, और बी वाले कॉलम में किसको रखा था, ट्रांजिशन एलिमेंट्स को, जिन्हें हम आजकल डी ब्लॉक एलिमेंट्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। इस तरीके से उसने अपना क्लासिफिकेशन किया। तो बहुत सारी उसकी सक्सेस थी, बहुत सारे उसको बहुत सारी बातों के बारे में उसने बताया, ठीक है। एट्थ ग्रुप जो था उसका, जो एट्थ ग्रुप था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का, सॉरी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का, उसमें कलेक्टिवली उसने 3 एलिमेंट्स को एक साथ रखा। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, एक में उसने आयरन, कोबाल्ट और निकेल, इन तीनों ट्रांजिशन एलिमेंट्स को एक साथ रख दिया था एट्थ ग्रुप में। जो एट्थ वाला उसका ग्रुप था, उसमें 7 जो ग्रुप थे वो तो सारे 2 पार्ट्स में डिवाइडेड थे, ए और बी। ए में सारे सिंपल एलिमेंट जो मैंने आपको बताया एस और पी एलिमेंट्स होते हैं, और बी में सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स जिन्हें हम आजकल डी एलिमेंट्स के, डी ब्लॉक एलिमेंट्स के नाम से जानते हैं। जो एट्थ वाला ग्रुप था वो बाकी के 7 ग्रुप से थोड़ा सा अलग था, उसको उसने फर्दर 2 पार्ट्स में यानी ए और बी में डिवाइड नहीं किया था, और एक ही ग्रुप में 3 एलिमेंट्स को एक साथ रखा हुआ था। जैसे एक ग्रुप में मैं आपको बता रही हूँ आयरन, कोबाल्ट और निकेल, तीनों एक साथ थे, तीनों ट्रांजिशन मेटल्स हैं ये स्टूडेंट्स, ध्यान रखो इस बात को। तो बहुत सारे मेरिट्स थे इसके, बहुत सारी बातें इसकी अच्छी थी, बहुत सारी बातों के बारे में हमें पता चला, और बहुत सारे लेकिन कमियां भी थी, ठीक है। ऑब्वियसली कमियां रही होंगी तभी हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया। ये देखो ये है उसका पीरियोडिक टेबल, क्लियर, दीज आर द पीरियड्स एंड दीज आर द ग्रुप्स, और ये जीरो ग्रुप यहाँ पर बाद में इंट्रोड्यूस हुआ। और हर ग्रुप अगर आप देखो ए बी ए बी ए बी में डिवाइड है, और ये जो एट्थ वाला ग्रुप है ये ए बी में डिवाइड नहीं है, यहाँ पर there he has kept the transition elements, three elements he has kept together। ठीक, देख रहे हो ना, सब अच्छे से देख पा रहे हो। so this is a first group A and B, second group A and B, third group A and B, fourth group A B, fifth group A B, sixth group A B, seventh group A B, and eighth group only one, there is no division, ठीक है। and these are the periods, ये periods है हमारे, फिर इस तरीके का उसने periodic table बनाया था। अब क्या उसकी सक्सेस थी, क्या मेरिट्स थे उसके, तो सबसे पहला मेरिट तो यही था कि हैज गिवन द सिस्टमैटिक स्टडी टू एलिमेंट्स, ठीक है। उसके बाद जो हमारे स्टडी को, इट गिव्स अस अ सिस्टमैटिक एंड कलेक्टिव यू नो स्टडी टू द एलिमेंट्स बिकेम पॉसिबल आफ्टर दिस पीरियोडिक टेबल। एक जगह पर हमारे पास सारे एलिमेंट्स थे कि हाँ ये इसकी पोजीशन है, ये इसकी पोजीशन है, ये इसकी है, ये इसकी है, और इनमें ये सिमिलैरिटीज है, इनमें ये सिमिलैरिटीज है। सिस्टमैटिक स्टडी पॉसिबल हो पाई, एक कलेक्टिव स्टडी हो पॉसिबल हो पाई आफ्टर द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। सेकेंड थिंग, सेकेंड उसका जो मेरिट था वो क्या था कि हैज करेक्टेड द एटॉमिक मासेस एंड वैलेंसीज ऑफ मेनी एलिमेंट्स। बहुत सारे एलिमेंट्स और हमारे जो एलिमेंट्स के जो मासेस थे और वैलेंसीज थी वो गलत थी, तो उससे उसने करेक्ट किया। कैसे, फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ बेरिलियम का। बेरिलियम का हम लोग एटॉमिक मास जो कंसीडर करते थे वो कंसीडर करते थे 13.5, और उसकी वैलेंसी जो कंसीडर करते थे वो 3 थी, जबकि मेंडलीव ने करेक्ट किया विद अ फॉर्मूला। हालांकि उस फॉर्मूला की आपको जरूरत नहीं है, फिर भी मैं बता देती हूँ। वो फॉर्मूला था कि एटॉमिक वेट यानी एटॉमिक मास इज इक्वल टू वैलेंसी इनटू इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है आप लोग आगे आगे जानोगे इसके बारे में। तो इस फॉर्मूला से उसने कैलकुलेट किया, तो अब हमारे पास जो बेरिलियम का एटॉमिक मास आया वो था 9.1 एग्जैक्टली, तो 9.1 जिसे हम 9 ही लेते हैं, और पता चला कि इसकी वैलेंसी 3 नहीं 2 होती है। तो ऐसे ही बेरिलियम के अलावा और बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे थे जिनका एटॉमिक मास और वैलेंसी हम गलत स्टडी कर रहे थे। आपको पता है बेरिलियम को जो पिछले पीरियोडिक टेबल से उनमें कोई पोजीशन ही नहीं मिल पाई थी इसी वजह से, क्योंकि उसकी वैलेंसी ही गलत थी, उसका मास ही गलत था। लेकिन उसके वैलेंसी और एटॉमिक मास को मेंडलीव ने करेक्ट किया, और ऐसे कुछ और भी एलिमेंट्स थे जिसके एटॉमिक मासेस को उसने करेक्ट किया, ठीक है। अच्छा, फिर ही हैज प्रिडिक्टेड द प्रॉपर्टीज ऑफ सम एलिमेंट्स। उसने क्या बोला कि जैसे उसने बोला कि ये वाले सेम सारे जो एलिमेंट्स हैं सबकी प्रॉपर्टीज सेम होंगी, जैसे इसका एटॉमिक मास ये, इसका एटॉमिक मास ये, अरे इसका एटॉमिक, अब उसने प्रेडिक्ट किया कि यहाँ पर तो एक एलिमेंट ऐसा आना चाहिए था जिसका एटॉमिक मास इन दोनों के बीच का होना चाहिए था, लेकिन वो तो अभी है ही नहीं। तो कोई बात नहीं, उसने उसकी जगह खाली छोड़ दी और उसके एटॉमिक मास, उसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज उन्हें पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया।
और उनको एक नाम भी दे दिया कोई कुछ, जैसे उसने नाम दिया एक एलिमेंट को एका सिलिकॉन। एका सिलिकॉन, एका का मतलब क्या होता है? आफ्टर। ठीक है, तो उसने बोला आफ्टर सिलिकॉन एक एलिमेंट आएगा यहाँ पर, उसने पोजीशन उसके लिए जगह छोड़ दी और उसकी ये प्रॉपर्टीज होंगी। और बाद में यस हमारे पास जर्मेनियम आया और उसकी सारी प्रॉपर्टीज वही निकली जो उसने प्रेडिक्ट की थी। ठीक है, फिर उसने बोला एक एलिमेंट को, उसने बोला कि एल्यूमिनियम के बाद एक एलिमेंट आएगा और उसकी प्रॉपर्टीज ये होंगी। ऑब्वियसली एल्यूमिनियम से मिलती जुलती, लेकिन उसके आगे की प्रॉपर्टीज थी और उसे उसने नाम दिया एका एल्यूमिनियम। यस, बाद में हमारे पास गैलियम इन्वेंट हुआ और फिर उसको वहां पर पोजीशन दे दी गई। इस तरीके से बहुत सारे एलिमेंट्स उसने, एका बोरोन एक एलिमेंट का नाम बताया जो बाद में हमारा स्कैंडियम निकला। एक मैग्नीज एक एलिमेंट का नाम उसने दिया जिसके लिए पोजीशन उसने छोड़ी, बाद में वो टेक्टीरियम निकला टीसी। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे एलिमेंट्स के लिए उसने पहले ही प्रिडिक्शन कर दी कि ऐसे ऐसी प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स आएंगे। तो जब ऐसी प्रॉपर्टी का एलिमेंट साइंटिस्ट को मिला तो उन्होंने फौरन ही पीरियोडिक टेबल में उसे प्लेस दे दिया, क्योंकि जगह तो उसकी ऑलरेडी वहां पर खाली थी। ठीक है, उसको जगह खाली करने की, उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं थी। तो ऐसे बहुत सारे उसके मेरिट्स थे, लेकिन फिर डीमेरिट्स की बात आई और उसके ड्रॉबैक्स की बात आई। तो ड्रॉबैक्स क्या थे? सबसे पहली ड्रॉबैक उसका क्या था कि पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की पोजीशन को ही वाज नॉट एबल टू जस्टिफाई, बिकॉज वी ऑल नो दैट हाइड्रोजन रिजेंबल्स बोथ. Some of the properties of hydrogen resembles to alkali metals and some of the properties of hydrogen resembles to halogens. तो अब उसे कहाँ रखा जाए, हेलोजन के साथ रखा जाए या एल्कली मेटल्स के साथ रखा जाए पीरियोडिक टेबल में, ये वो नहीं बता पाया। उसके बाद सेकंड उसका डिमेरिट क्या था कि एनॉमलस पोजीशन, नो सिमिलैरिटी स्टिल पुट टुगेदर। मतलब क्या हुआ इस बात का कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जिनकी प्रॉपर्टीज जो है सेम नहीं थी। जैसे आर्गन एंड पोटेशियम की अगर हम बात करें, वी ऑल नो दैट आर्गन इज अ नोबल एलिमेंट, है ना, एंड पोटेशियम इज मेटल। ठीक है, इन दोनों की प्रॉपर्टीज तो बिल्कुल भी सेम नहीं है, लेकिन पीरियोडिक टेबल में इनको सेम जगह रखा गया था, पास पास रखा गया था। बहुत क्यों? क्योंकि इनके जो एटॉमिक मासेस हैं वो एक दूसरे के उसमें आते हैं, सिमिलर है वो मासेस। कैसे? आर्गन का एटॉमिक मास होता है 39.9 एंड पोटेशियम का मास होता है 39.1। ठीक है, तो इन दोनों को एक साथ रखा गया, लेकिन उसमें भी प्रॉब्लम क्या आया कि आर्गन को पहले पोजीशन मिली और पोटेशियम को बाद में। जबकि अकॉर्डिंग टू एटॉमिक मास भी अगर हम देखें तो पोटेशियम का एटॉमिक मास है 39.1 और आर्गन का है 39.9। तो पोटेशियम शुड कम फर्स्ट एंड आर्गन शुड कम आफ्टर द पोटेशियम। जबकि मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में आर्गन की पोजीशन पहले थी और पोटेशियम की बाद में थी। उसी तरीके से कोबाल्ट एटॉमिक मास 58.9 एंड निकिल एटॉमिक मास 58.6। so nickel should come first, but in the Mendeleev's periodic table cobalt was first. ठीक है, तो ऐसे ही इनकी पोजीशन को ना जस्टिफाई नहीं कर पाया कि एक तो इन्हें साथ साथ क्यों रखा है, दो इनकी प्रॉपर्टीज तो काफी अलग है, और उसके बाद अगर रखा भी है तो इनका अरेंजमेंट क्यों चेंज कर दिया, बिकॉज ही वाज अरेंजिंग द एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक मासेस। तो एटॉमिक मास के बेस पर तो ये अरेंज ही नहीं हो रहा है, ये ऊपर नीचे हो रहा है। तो यहाँ उसका ये एक ड्रॉबैक आया। थर्ड उसका ड्रॉबैक आया कि पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स को बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट एटॉमिक मासेस बट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर। अब क्योंकि वो एटॉमिक मास के बेस पर अरेंज कर रहा था, और आइसोटोप के तो एटॉमिक मासेस अलग अलग होते हैं। जैसे हम हाइड्रोजन की ही बात करें, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं और तीनों का एटॉमिक मास अलग अलग है, तो उन तीनों को अलग अलग पोजीशन मिलनी चाहिए अकॉर्डिंग टू मेंडलीव, क्योंकि अलग एटॉमिक मास का अलग पोजीशन है। तो इन तीनों को अलग पोजीशन क्यों नहीं दी, एक ही जगह क्यों रखा? और अगर अलग पोजीशन देनी है तो कैसे देनी है और वो कौन सी पोजीशन होगी, इसके बारे में वो बिल्कुल भी नहीं बता पाया। यानी आइसोटोप्स को वो एक प्रॉपर पोजीशन नहीं दे पाया। ठीक है, और जैसे मैंने आपको बताया कि सिमिलर एलिमेंट्स जो थे वो तो सेपरेटेड थे और डिसिमिलर एलिमेंट्स आर ग्रुप टुगेदर। सिमिलर एलिमेंट्स थे हमारे जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ठीक है, इन सबको कहाँ रखा गया था? कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। इनकी प्रॉपर्टीज तो एक दूसरे के साथ बिल्कुल नहीं मैच करती, लेकिन इनको साथ साथ ही रखा गया था। तो क्यों उसने सिमिलर एलिमेंट्स को तो अलग अलग रख दिया और जो डिसिमिलर एलिमेंट्स थे उनको एक साथ रख दिया? इसको वो बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। उसके बाद ही कुड नॉट एक्सप्लेन द कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी मतलब अभी मैंने आपको बताया रिपीटेशन और रीअकरेंस ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज आफ्टर द रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम, और यू कैन से द रेगुलर इंटरवल ऑफ एलिमेंट्स। तो ये क्यों रिपीट होता है? प्रॉपर्टीज रिपीट होती है तो हमें पता है, बट होती क्यों है रिपीट, इसका वो कोई रीजन
नहीं दे पाया, ठीक है। देन नो प्लेस ही हैज गिवन टू द लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स, उनके लिए लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स के लिए वो कोई भी प्लेस कोई भी पोजीशन नहीं बता पाया। तो ये सारे उसके डीमेरिट्स थे। इन डीमेरिट्स की वजह से अब हमें लगा कि नहीं, नाउ देयर इज नीड ऑफ वन मोर पीरियोडिक टेबल। तो उसके बाद हमारा कौन सा पीरियोडिक टेबल आया? उसके बाद आया हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो अब ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या है और कैसे हमने इसके बारे में पढ़ा, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो till that students,